Hi guys, welcome back to my channel. Hi, my name is Priya. I make videos related to beauty, lifestyle and many more. So today's video is all about summer essential or like appropriate things you should buy for upcoming hot and humid climate. So without a further ado, let's get started. So the first category is toners. We all know toners are like the precious step or the most important step in our skincare. So my top recommendations for toners are this one from Dot and Key. It's Dot and Key watermelon variant. It's like AHA BHA toner. As we all know, AHA is very much important for our skin to slightly exfoliate and give that shiny glow. Let's come to its benefits. It is very much useful in pore tightening, mild exfoliation, and to remove texture or uneven skin. The most important part is it's alcohol free, and as per the quantity of glycolic acid in it, you can use it like twice a day if you are not using any other exfoliant other than glycolic acid. And the best part is it helps in reducing sebum production, or you can say oil in T-zone. It literally brighten up your complexion. Like you can see my skin is non-sticky and it is quick absorbing. You don't need to wait for minutes for like absorbing it. Stony Moly hyaluronic acid one. As we all know, hyaluronic acid is best for hydration, and in summers sometimes we don't feel like applying 2 to 3 skincare or like layers of skincare, then this come to handy. Like you can layer it up with your favorite sunscreen and you are good to go. No other moisturizer, any serum for hydration, you doesn't need that. So the next category is serums. As we all know, we need soothing and calming serums, but sometimes we like to exfoliate. So here are my recommendations for serums also. First of all is this Wow serum. It's Wow green tea serum, and it is packed with antioxidant which help in reducing like your bumps or dryness in the skin, and it helps in calming down the redness or like like sunburnt skin, and it really gives cooling sensation on your face. For the girlies who have chubby cheeks or like puffiness in the morning, excessive puffiness, you can try Wow caffeine serum. It's literally so inexpensive, and it helps in reducing puffiness, brighten up the complexion and many more. Also evens out my skin textures, and I can really say इधर से मेरा काफ़ी टेक्सचर हटा है. नेक्स्ट सीरम इज़ फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम acne marks or like proper discoloration in their skin. It's from Beauty of Joseon. I bought the trial pack and then I switched to like full size bottle of this, for like I want to check it if it's really worth the hype or like worth the money or not. So it's their Glow Deep serum. It contains like niacinamide and alpha arbutin in it. I think a little bit of rice extract also. I swear to God, this is the best serum for pigmentation. You can see my skin, it's glowing within. I haven't applied any makeup except liner and lipstick. Any single thing I didn't. If you are in the category of extremely oily skin, then this serum is for you. You can use it as like your daily moisturizer without using it as like serum. And for the girls who are like drier side, you can use it as a serum, as it contains various kinds of barrier repair
things, great for all skin types. The best part is it has a few amount of niacinamide in it, which helps in lightening and brightening of your skin, and also evens out your pores and textures. Let's come to the category of body. For the body, like exfoliation, I have few recommendation or few product for like scrubbing range, and it's from M Caffeine AHA BHA gel or whatever you wanna say this, because it's like in watery consistency. Here you can see the clip. It really removes tan. I don't know why this product isn't in their viral list, but it really deeply cleans out my skin. It's best for like back acne or fungal acne also. It soothes the skin and also removes the darkness or like dull skin. And the greatest part is you don't need to be like sticky all the time. If you are in like tints, then you must try this tint. I am also applying it on my lips today. और ये नॉन स्टिकी है लिटरली. इसको अगर आपने टाइम दिया है सूखने के लिए तो ये बहुत नॉन स्टिकी है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है इन टिंट्स वेरिएंट्स. सो प्लीज़ इसको ज़रूर बाय करना. एंड आई एम इन द शेड knee high, 55 knee high. If you are in budget, then you can also watch my video of Meesho finds. Here I also find out some crazy tints, so you can also use them. And for the lip hydration, I must say I have been using this lip balm for a while, and it's from Biotique, and it like a budget friendly good lip balm with good quantity, and it also reduces the pigmentation around your lips and helps in like deeply exfoliating them or deeply moisturizing them. And the next category in body care is this roll on. This is the best roll on I have ever used. You can see it is like in liquidy form and it quickly absorbs. आपको इसको ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और ये मेरा जो वेरिएंट है, आई थिंक एक्वा है. नो, इट्स फ्रेग्रेंस फ्री वेरिएंट and it contains 5% AHA also, which is the best thing I have ever used for my underarm. इसने literally pigmentation हटा ही दिया, just थोड़ा बहुत रहता है. I am using it for a while now ताकि मैं summers में sleeveless dresses पहन पाऊँ आराम से. Favorite part of mine, hair care. The first serum is this from Streak Professional. It's so lightweight, so yet best in fragrance category also. It really long lasting and doesn't provide any heat protection, which I don't mind at all क्योंकि मैं ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं यूज़ करती अपने बालों पे. जस्ट हल्का सा ब्लो ड्राई बहुत है. एंड इट ऑल्सो टेम्स आउट योर लाइक little flyaways. Serum is this one. It's from Dove. I am using it for quite a while, and I must say I have seen various kinds of difference in my hair. Like इसको मैं डीप कंडीशनिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ. इसको मैं हेयर मास्क में मिक्स करके या हेयर मास्क बना रही हूँ तब यूज़ कर सकती हूँ. इसको मैं हेयर वॉश के बाद यूज़ कर सकती हूँ. और ये कुछ हद तक आई फील लाइक पर्सनली कि हीट प्रोटेक्शन भी देता है. ऑल्दो इट डजंट क्लेम कि ये हीट प्रोटेक्शन देता है, बट स्टिल मेरे को ऐसा फील हुआ मेरे हेयर प्रोटेक्ट हो रहे हैं, मेरे को कोई डैमेज नहीं दिख रहा है. सीरम इन हेयर केयर कैटेगरी इज़ दिस वन. इट्स फ्रॉम सनसिल्क. आई नो ये मेरे को डिस्काउंट में मिला था रिलायंस में. लाइक इट्स अ फ्रीबी फॉर मी, बट the formulation, the consistency, everything is top notch. Again, it's not like their heat protection या protecting variant, but it really so hydrating for my hair. I use it every single time on my trips. ये सेकेंड नंबर पे है मेरी लाइफ में लिटरली.
फर्स्ट नंबर पे जो दूसरा सीरम है वो तो मैं काफ़ी ही मतलब, एक होता है ना कि आप कुछ भी लाइफ में कुछ भी ट्राई कर लो बट यू बैक टू बेस, यू कम एंड बैक टू योर बेसिक्स। तो वो सीरम मेरे लिए वो है, मैं उस पर हमेशा जाती हूँ। सीरम इज़ माई फेवरेट बायोटिक वन। इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, एक्सेप्ट हीट प्रोटेक्शन ये सब देता है, लिटरली ऑल इन वन। अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो यही सीरम है। बट द मेन पार्ट ऑफ दिस सीरम इज़ इट इज़ लाइक ऑल इन वन फॉर मी। मैं कभी भी ऐसा नहीं होती कि इससे कभी बोर हो जाऊँ या ये हो जाऊँ कि चेंज कर लूँ। थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू एंड ऑल, बट मैं वापस इसी के पास आती हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फेस मॉइस्चराइज़र। इफ़ यू आर ऑयली पर्सन और ऑयली स्किन पर्सन, अवॉइड फेस मॉइस्चराइजर्स एक्सेप्ट द डॉट एंड की बेयर रिपेयर सीरम वन। आप उसको यूज़ कर सकते हो एज एन योर फेस मॉइस्चराइज़र। बट इफ़ और अगर आपको फिर भी है कि आपको यूज़ करना है जेल बेस्ड चाहिए, तो डॉट एंड की का ही जेल वाला आता है एक डब्बी में, उनकी ग्लास वाली हैट वाली में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो भी बैरियर रिपेयर वाली रेंज का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो। और अगर उसका वेरिएंट चाहिए, चीप वेरिएंट, तो आप उसकी जगह पॉन्ड्स का ब्लू लाइट जेल वाला जो आता है टब, वो ख़रीद लो। ट्रस्ट मी, बेस्ट है वो भी। वो लिटरली इसके टक्कर में दोनों इक्वल हैं कि अगर आपको क्वांटिटी चाहिए बट अमाउंट कम होना चाहिए तो पॉन्ड्स वाला ले लो। अगर आपको है कि एग्जैक्टली ब्रांड नेम चाहिए प्रॉपर, तो डॉट एंड की वाला ले लो। काम दोनों का सेम है, इफ़ेक्ट दोनों सेम देते हैं। बट अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर में ही आप ट्यूब वाला यूज़ कर सकते हो। कम टू द पार्ट ऑफ SPFs, माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट थिंग। SPF इज़ लाइक वाटर फॉर मी, कि होता है ना कि पानी के बिना नहीं रह सकते, एक बार को खाने के बिना रह लो। येस, दैट्स द SPF impact in my life. The first SPF is from Dot & Key, their vitamin C plus E variant. It's the best SPF for like this kind of season. It provide SPF 50 protection and PA+++. If you have severely dry skin, then go ahead, उसको आराम से जाके यूज़ करो। बहुत हाइड्रेटिंग है। और आप उसे तब भी यूज़ कर सकते हो जब आपको होता है ना कि मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, जस्ट एन एक्सफोलिएटिंग टोनर एंड देन यू वांट योर SPF, देन यू आर गुड टू गो, तो तब आप वो वाली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सनस्क्रीन इज़ इट्स फ्रॉम डर्माको, हाइलोनिक वन, दिस वन। आई एम नॉट लाइक शोइंग एवरी बॉटल ऑन स्क्रीन बिकॉज बहुत हेक्टिक हो जाता है बाद में। सो ये वाली जो सनस्क्रीन है, इसको मैं इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके 2 वेरिएंट्स मेरे फेवरेट हैं। वन इज़ हाइलोनिक वन, जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ये मैं मोस्टली विंटर्स में यूज़ करती हूँ। अभी थोड़ा सा बचा है, इसको लिटरली मैं रैप अप करने वाली हूँ। और इसकी ख़ास बात ये है कि आपको लिटरली इतना प्यारा ग्लो देगा। आज मैंने यही लगाया हुआ है एंड लुक एट द ग्लो। ये बहुत प्यारा ग्लो देता है। अगर आपको ये चाहिए तो, अगर ग्लो चाहिए तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर ख़रीदना, चाहे आप ऑयली स्किन वाले ही क्यों ना हो। ये किसी मतलब ये इतना अच्छा है कि किसी को फंगल एक्ने तक है ना, वो तक नहीं होने देता है। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ SPF 50 एंड PA++. And the next sunscreen is from Plum. It's their rice water sunscreen. Best sunscreen for oily स्किन एंड लाइक ऑयली स्किन वालों को थोड़ा ग्रीसी लग सकता है। अगर आप मॉइस्चराइज़र स्किप कर लोगे तो बेस्ट है, वरना ये बेस्ट भी है ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है ऐसे ग्लो के लिए। तो आप इसको लिटरली आँख बंद करके ले लो, और ये पिगमेंटेशन भी हटाता है, ये स्किन को ब्राइटन अप भी करता है। इट प्रोवाइड SPF 50 with PA+++. If you really want that cooling sensation, then you must try this one. It's from Dot & Key, their cooling variant. It's so much ठंडा कि आप भी मतलब, जैसे मैं अभी बताने में नहीं ऐसे हो रही हो ना कि कैसे समझाऊँ। ये लिटरली बहुत ठंडा है। अगर आपने ये फ्रिज में रख के यूज़ किया है कि लाइक यूज़ करने से पहले फ्रिज में रख दी,
10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए, देन यू मस्ट से कि भाई स्किन में राहत मिल गई इतना ठंडा यूज़ करके। फेवरेट दी ओजी द डर्माको सनस्क्रीन, देयर लाइक अल्ट्रा मैट वेरिएंट, एक सिलिकॉन वाला आता है इनका वेरिएंट, ये वही है। इट प्रोवाइड्स SPF 60 with PF 4+ एंड इट्स माई फेवरेट सनस्क्रीन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली बिहेव करती थी, और हॉस्टल्स में आप ACs में नहीं रह सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल्स में हो तो आपको ग्लो भी दिखाना है स्किन पे, बट आपको ये है कि चिप भी नहीं हो, तो आप प्लीज़ आँख बंद करके, इफ़ यू ट्रस्ट मी देन यू मस्ट बाय और ट्राई दिस सनस्क्रीन। चलो जी, लेट्स कम टू माई शैम्पू कैटेगरी और लाइक हेयर वॉशिंग कैटेगरी। हाँ, थोड़ा आगे पीछे है, आई नो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि मैंने सारा यहाँ पे नोट डाउन किया। फर्स्ट शैम्पू इज़ फ्रॉम लव ब्यूटी एंड प्लानेट। It's like so good for people who have greasy scalp and dry ends. आज भी मैंने उसी से हेयर वॉश किया एंड लुक एट द शाइन। थोड़ा मेरे सीरम्स का भी कमाल है, बट स्टिल लुक एट द शाइन एंड क्लीनलीनेस इन माई रूट्स। और ये इतनी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ना कि आप मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मॉइस्चर प्रॉपरली स्ट्रिप होगा, और आपको ये भी फील नहीं आएगी कि आपके हेयर क्लीन नहीं हुए। ये बहुत बहुत प्यारा है, सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। एंड द सेकेंड शैम्पू इज़ दिस वन फ्रॉम L'Oreal. It's their Extensio range. I have used it when like I want a squeaky clean scalp but a hydrating scalp for styling my hairs. कि होता है ना, 1-2 दिन बैक टू बैक मेरे को स्टाइलिंग करनी है, घर पे शादी हो या आपका कोई शूट हो, तो तब मैं इसको यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि तब मेरे को वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती, मेरे को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, ताकि मेरे बाल मॉइस्चर स्ट्रिप ना करे या फिर मेरे बालों का मॉइस्चर ख़त्म ना हो। फॉर द फेस वॉश कैटेगरी आई हैव various face washes for you guys. So the first one is oat milk face wash. This one, if you are dealing with extremely dry skin, then please try this. हाँ, ये सेटाफिल जैसा है, बट आई फील लाइक पर्सनली सेटाफिल ने मेरी स्किन काफ़ी अच्छे से क्लियर कभी नहीं करी है। मेरे को ग्रीसीनेस या बोलते हैं ना कि ऑयल क्लेंजिंग जब आप करते हो तो वो आई फील लाइक कि वो थोड़ा रह जाता है फेस पे, बट जो इफ़ेक्ट मेरे को इससे मिला है किसी से नहीं मिला। ये लिटरली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लाइक बोलते हैं ना सीबम प्रोडक्शन, और आई कैन से इसने काफ़ी हेल्प करी मेरी स्किन में से डर्ट पुल आउट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट फेस वॉश इज़ फ्रॉम द मिनिमलिस्ट एंड इट्स देयर सैलिसिलिक वेरिएंट। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन है तो आप इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हो एज योर एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस। It will deeply clean your skin and reduces sebum production. And the next face wash is this. It's also from Minimalist. It's the alpha lipoic plus glycolic acid, whatever it says. But the things I have seen is like इस फेस वॉश से एक्ने मार्क्स में रिडक्शन हुआ है, कि जैसे आप फेस वॉश कर रहे हो, जस्ट उसको 5 मिनट्स के लिए फेस पे ऐसे ही रहने दो एंड देन वॉश इट ऑफ। आप लिटरली फील कर पाओगे कि आपकी स्किन क्लीन हुई है। आई एम नॉट गोना से मच फॉर लाइक फेस वॉशेस, बिकॉज अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं डीपली बता देती हूँ पहले। एंड द नेक्स्ट फेस वॉश इन हाइड्रेटिंग कैटेगरी इट इज़ फ्रॉम डॉटन की द बैरियर रिपेयर ब्लू वाला ट्यूब। वो बहुत बिग फैट ट्यूब आती है जो ख़त्म ही नहीं होती। मैं काफ़ी टाइम से मतलब घर पे रखी हुई है, मैं घर पे जब भी जाती हूँ मैं तभी यूज़ करती हूँ, थोड़ी बहुत मेरी मम्मा यूज़ कर लेती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। और वो काफ़ी अच्छा है, वो डीपली तो नहीं, बट ये कह सकती हूँ वो फेस पे से ऑयल वगैरह सब हटा देती है, क्लियर आउट कर देती है विदाउट स्ट्रिपिंग योर एक्चुअल फेस मॉइस्चर। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ प्लम नाइसिनामाइड वाला जो नया एक रेंज निकाली इन्होंने दोबारा से, मतलब प्रॉपर पूरी रेंज है उसका जो फेस वॉश है, वो फेस वॉश भी आई कैन से इट वॉन्ट स्ट्रिप योर स्किन मॉइस्चर। इट्स सो
hydrating. I personally feel it hydrating for my skin. So really in L'Oreal thing, then you must try their glycolic range. Extremely recommended because उसकी glycolic range ही पूरी अच्छी है. Serum, face wash, under eye roll on kind of पूरा range काफ़ी ज़्यादा interesting है. And I have used their face wash. In fact, my family members use their face washes. And the other than Korean product, the Face Shop rice वाला जो उसका फेस वॉश है, आप प्लीज़ उसको ट्राई करना. इट विल बी योर फर्स्ट कोरियन प्रोडक्ट. मेरा जो शुरुआत थी, मैंने सबसे पहले इसी को यूज़ करना शुरू किया था जब मैं कोरियन प्रोडक्ट्स में एंट्री ले रही थी. बहुत प्यारा फेस वॉश है. ये सारे फेस वॉशेस ऑल स्किन टाइप्स के लिए, वेदर इट्स हाइड्रेटिंग वन और नॉट, सब यूज़ कर सकते हैं. द लास्ट कैटेगरी इज़ हेयर मास्क और लाइक हेयर कंडीशनर्स. सो द फर्स्ट वन इज़ दिस बायोटिक हेयर मास्क. ये बहुत प्यारा है. इसके 2 वेरिएंट्स हैं, आर्गन ऑयल एंड बनाना वन, जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं. और ये लिटरली बहुत इनएक्सपेंसिव है. ट्रस्ट में, ये इतने इनएक्सपेंसिव होके एकदम स्पा लाइक फिनिश देते हैं ना आपके हेयर्स को. इट रियली फील्स ग्रेट. और बनाना वाला जो वेरिएंट है, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस, शेफ्स किस, बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा. अगर आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, देयर इज़ नो गोइंग बैक टू अदर हेयर मास्क. एंड द नेक्स्ट हेयर मास्क इज़ फ्रॉम प्लम, द एवोकाडो रेंज हेयर मास्क. तो वो हेयर मास्क मेरे को शुरू में तो स्मेल से और टेक्सचर वाइज ऐसा लगा था, मतलब कलर वाइज कि वाइट मिल्की से उसकी कलर है. तो मेरे को ऐसा लगा फेविकॉल तो नहीं है, क्योंकि मैंने उसे ब्लिंकिट से मंगाया था. बट जैसे वो हेयर स्मूथ करता है ना, आई वुड से कि बनाना वन की तरह ही करता है. बट वो भी अच्छा है. वो चीप और इनएक्सपेंसिव वे में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल, या बोलो प्राइस रेंज के हिसाब से वो बहुत चीज़ें करता है अनएक्सपेक्टेडली. ये वाला अपने प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है. एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ बॉडी लोशंस. आई हैव बीन यूजिंग दिस HA1 फ्रॉम विश केयर फॉर माई पिगमेंटेड आर्म्स, लाइक टैंड आर्म्स. मैं टूर वगैरह पे जाती हूँ तो मेरे हाथ टैन हो जाते हैं बहुत गंदे वाले, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है. उसकी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है. और अगर आप उसके ऊपर कोई भी स्वीट या कोई मस्की परफ्यूम ब्लेंड कर लो तो you will love that one. So yeah, we come to the end of this video. If you like my video, do let me know in the comment section. Till then, bye bye.